Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we have a topic of public key cryptography. We have discussed in the previous lectures the private key encryption technique, in which we discussed the DES algorithm, that is data encryption standard. The next version of the symmetric encryption is the AES, that is advanced encryption standard algorithm. So, in a private, if we recall that we have two type of encryption technique. One is the private key, and another one is the public. In a private key system, we use only one key. But in a public key system, we have two pair of keys. One is known as the private key, and the other one is known as the public key. There. So one key is used for the encryption, another key is used for the decryption there. But we face some problem in private key system there, like the key sharing is one of the main reason there, because in a private key system the same key is used for the encryption and decryption. If you are the sender and you encrypt the message with some key, then you deliver a message to the recipient with the key also there. So you have to another appropriate way to send that secret key to the recipient there. Through that secret key, that recipient can decrypt the message there. But in another problem is that if the key compromise, because we use only one key there, if the key compromised, then all the security have lost there. And the third problem is that the trust level there. If A and B trusted each other, the mechanism so fine. But if A and B did not trust each other, so A maybe disclose the key or leak the key, then A blame on B, or B if leak the keys to someone else there, then B blame on A there. So for that reason, they introduce another kind of public key system there, in which they call one is key is called the private key, and other one is called the public key. If we want to understand the concept, just for an example there, to understanding the concept of public ID. If someone asks our email ID, we just send that email ID to that person there, or tell that email ID immediately without hesitation. But if someone asks about your Yahoo password and Hotmail password or Gmail password, so you don't disclose it there, because that password is just like a private key there. So in the public key system, uh, you have two keys. One is your private key, and another one is your public key. So your public key is publicly available. You may be published on your website, or maybe your organizational website, on your personal website. If someone asks your public ID, you just send it to your public ID there. But you save your private key in some secret place there on your system with a password protected there. So in a public key system, one key is called the public key, and another one is called the private key. So traditional private secret single cryptography uses one key, we already discussed, shared by both a sender and the receiver. If this key is disclosed, communication are compromised. So this is also a symmetric, because parties are equal to each other. Hence does not protect sender from receiver forging a message or claiming but sent. Because if the key is shared among A and B, maybe A send it to B some data, and B change that data after receiving it, then blame on A there. And if A and B may be negotiated earlier on some predefined content, and if A send that data but it deviate from that predefined agreement there, so A blame on B that you change the data there.
So probably most significant advance in the 3000 years history of cryptography that uses two keys, one a public and a private key. So asymmetric since parties are not equal and uses clever application of number theoretic concept to function there, and that complements rather than replaces the private key cryptography. So public key, or you can say the asymmetric system, involves the use of two keys. One is the public key, which may be known to anybody and can be used to encrypt the message and verify the signature. So if A is the sender and B is the receiver, so A knows the public key of B there. So A encrypt the message with the public key of B there, and B decrypt that message by using its own private key there. This is the encryption mechanism that is used in public key encryption there. This is the way how we secure in a public key system. Sender encrypt the message by the public key of the receiver, and receiver decrypt that message by its own private key. If we add some signature in it there, so in why we add the signature, the data signature is another topic which we will cover in the next lecture. But if we endorse that document, for example, if we call the private key encryption, in which A and B have sharing some data, and A is the sender and B is the receiver there, and A knows the key and B knows the private key there. Only the key shared among A and B there. If A sums data to B and A by the end, that basically deny, okay, he or she did not send this message content there. So how we track that A basically send that data content or not there? If that sender endorse that file with its own digital signature on it there, and B verify the signature, or anyone can verify the signature of the sender. So if the signature verifies, then the sender cannot deny it later there. So in a public key system, basically the signature produces by the sender private key there. So sender basically have performed two things. One is the encryption by using the receiver public key, and by adding the signature with its own private key there. And the receiving side, the receiver have performed two functions. One is to verify the signature by how it's verify the signature, by verifying the signature of the sender. तो वो सिग्नेचर वेरीफाई कैसे करेगा? वो सेंडर की पब्लिक की से वेरीफाई करेगा और अपनी प्राइवेट की से वो मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा. तो इन दिस वे basically we perform two things. One is the encryption and other one is the decryption there. So a private key known only to the recipient used to decrypt the message and sign or create the signature. In asymmetric, because those who encrypt the message or verify the signature cannot decrypt the message or create the signature. Why it's called the asymmetric? Because जो encrypt कर रहा है message और जो verify कर रहा है वो decrypt नहीं कर सकता message. Because encryption कैसे हो रही है? सेंडर जो है वो रिसीवर की पब्लिक की से इंक्रिप्ट कर रहा है और अपनी प्राइवेट की से सिग्नेचर इंडोर्स कर रहा है, और रिसीवर सेंडर की पब्लिक की से सिग्नेचर वेरीफाई कर रहा है और अपनी प्राइवेट की से मैसेज को डिक्रिप्ट कर रहा है. So in a public key system, we have a plain text that input into the public key cryptographic algorithm. For example, now we consider the RSA. So RSA stands for the Rivers, Shamir, and Edelman. These are three MIT
researchers or professor. They developed this RS algorithm in 1976. Until now, today, we use this as a standard asymmetric encryption algorithm worldwide. जहाँ भी हम asymmetric encryption की बात करते हैं तो वहाँ हमारे पास as a standard algorithm के तौर पे RSA यूज हो रहा है. So, क्योंकि की डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से जो है वो हमने पब्लिक की सिस्टम यूज किया. फिर डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू हम जो है वेरीफाई भी कर रहे हैं मैसेज को. तो ये दोनों चीजें हमें अचीव हो रही हैं थ्रू दी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी. जो पहला पब्लिक की का कॉन्सेप्ट था, आइडिया था, दैट वाज बेसिकली डेवलप्ड बाय डेफियन हेलमैन, जिसे हम आज भी डेफियन हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम के तौर पे जानते हैं. तो अब वो डेफियन हेलमैन जो पब्लिक की सिस्टम है वो इंक्रिप्शन के लिए हम ये यूज नहीं कर रहे लार्ज मैसेज को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए, लेकिन हम आज भी जो है डेफियन हेलमैन की एक्सचेंज को एज अ पब्लिक की सिस्टम्स के तौर पे लेते हैं और हम उसे जो हमारा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है, फॉर एग्जांपल अगर हम डैश या एईएस से इंक्रिप्ट करते हैं और वो जो इंक्रिप्शन की है जिस उसी की से डिक्रिप्ट होना है, तो वो अगर वो की हम एक्सचेंज करते हैं दूसरी पार्टी तक डिलीवर करना चाहते हैं एक सिक्योर मैनर के थ्रू, तो वहाँ हम डेफियन हेलमैन की एक्सचेंज यूज करें. So the first public key scheme and the first partial scheme, which was for distribution only, was published in 1977 by Defian Health. The concept has been previously described in a classified report in 1970 and subsequently declassified in 1987. So, in interesting to note that they discovered RSA first, then Defian Hellman opposite to the order of public discovery there. So public key algorithm rely on two keys with the characteristic that one is computationally infeasible to find decryption key knowing only algorithm encryption key, and computationally easy to encrypt or decrypt message when the relevant encryption or decryption key is known. And either the two related keys can be used for encryption with the other used for the decryption. अब यहाँ आपको की एक्सचेंज की भी जरूरत नहीं पड़ रही, बिकॉज सेंडर जो है वो रिसीवर की पब्लिक की से इंक्रिप्ट करके भेज रहा है और रिसीवर को अपनी प्राइवेट की खुद से पता है जो उसके पास एक सिक्योर वे में सेव्ड है, तो वो अपनी प्राइवेट की से उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर रहा है. तो हमें यहाँ की एक्सचेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही. अगर हम पब्लिक की सिस्टम को सीक्रेसी के लिए यूज करें, यानी हम पब्लिक की सिस्टम को अगर हम सिर्फ सीक्रेसी के लिए बात करें कि हमारा पर्पस सिर्फ मैसेज को सीक्रेट करना है, इंक्रिप्ट करना है, हमारा पर्पस ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो वहां पर जो है वो आप क्या करेंगे, सिंपल जो ए होगा वो बी की पब्लिक की से मैसेज को इंक्रिप्ट करेगा और बी अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा. जैसे आप ये देख रहे हैं, दिस इज KUB का मतलब है दी पब्लिक की ऑफ बी, यानी जो ए है सोर्स वो बी की पब्लिक की से इंक्रिप्ट कर रहा है और बी जो है KRB वो अपनी प्राइवेट की से, KRB का मतलब है जो उसकी अपनी प्राइवेट की है वो उससे उसको डिक्रिप्ट कर रहा है. अगर हम पब्लिक की सिस्टम को ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करें, ऑथेंटिकेशन का मतलब ये कि हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये जो सोर्स ए से मैसेज आया है क्या ये वाकई सोर्स ए से आया है या somebody falsified the message, somebody falsifiedly create a message and generate or send it there on behalf of A there. तो उसके लिए क्या होगा कि A जो है वो अपनी प्राइवेट की से इस मैसेज को इंडोर्स करेगा यानी इंक्रिप्ट करेगा, मींस इस पे डिजिटल सिग्नेचर प्रोड्यूस कर रहा है. जो B होगा वो A की पब्लिक की से उसको वेरीफाई करेगा. अगर वो ए की पब्लिक की से वो सिग्नेचर डिक्रिप्ट हो जाते हैं या वेरीफाई हो जाते हैं, इट मीन कि ये ऑथेंटिसिटी हो गई कि ये सिग्नेचर ए के ही हैं और ए ने ही ये मैसेज जो है वो सेंड किया.
यानी अब जो भी मैसेज का कंटेंट कह रहा होगा वो ए उसको इंडोर्स कर रहा है, ए फिर उसको बाद में डिनाई नहीं कर सकता जब उसके सिग्नेचर वेरीफाई हो जाएंगे। तो अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो वहां हमारे पास जो है वो ये होगा कि ए जो होगा वो अपनी प्राइवेट की से सिग्नेचर इंडोर्स करेगा यानी इंक्रिप्ट करेगा, और बी की पब्लिक की से मैसेज को इंक्रिप्ट करेगा। बी ए की पब्लिक की से सिग्नेचर वेरीफाई करेगा और अपनी प्राइवेट की से वो मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ये उसका कॉन्सेप्ट है, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर। So public key we use in different application like encryption or decryption. Through that we achieve the secrecy, and in digital signature we use the public key there and for providing the authentication, and for the key exchange we use the public key algorithm there. जो हमारे पास डिफरेंट सेशन हम एस्टैब्लिश करते हैं उसकी कीज जो है एक्सचेंज होने के लिए वहां भी हम पब्लिक की सिस्टम्स को यूज करें। So, like private key system, brute force exhaustive search attack is always theoretically possible, but keys used are too large. Because in public key system, the minimum key size we use is the 512 bit. ये बात भी हम डिस्कस कर चुके थे कि इन टर्म्स ऑफ सीक्रेसी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि पब्लिक सिस्टम ज़्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू प्राइवेट की, क्योंकि पब्लिक की में आपके पास दो कीज हैं अलग अलग, इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट की, और वहाँ क्योंकि एक कीज है इसलिए उसकी सीक्रेसी लेवल कम है। लेकिन अगर हम प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो हम ये कहते हैं कि प्राइवेट की सिस्टम ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू द पब्लिक की सिस्टम, बिकॉज प्राइवेट की सिस्टम का की साइज जो है वो बहुत छोटा है, मैक्सिमम ऑफ 256 बिट दे, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 बिट दे, and in a public key system we start from 512 bit, multiple of 512 there, 1024 2048 bit। तो जब की साइज बड़ा होगा तो प्रोसेसिंग टाइम भी ज्यादा होगा। ब्रूट फोर्स सर्च अटैक भी डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि ब्रूट फोर्स सर्च अटैक का मतलब है कि हम वी आर ट्राइंग टू हैव द ऑल पॉसिबल वैल्यूज। अगर हमारे पास 512 बिट का की साइज है, we will try 2 की पावर 512 possible combinations है। Security relies on the large enough difference in difficulty between easy and hard problems. So it more generally the hard problem is known, just made too hard to do in practice there. So it requires the use of very large number and is slow compared to the private key. So RSA is developed by the MIT professors Rivas, Shamir and Adelman. तीनों ने अपने नेम पर इसको इंट्रोड्यूस किया, R for Rivas, S for Shamir and A for Adelman in 1976. So it is now the best known public key system and widely used a public key scheme here, based on exponentiation and a finite field over integer modulo of prime. So it uses the large integers and security due to the cost of factoring the large numbers. तो RSA का जो सीक्रेसी है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो लार्ज इंटीजर्स पे डिपेंडेंट। उनकी फैक्टरिंग क्योंकि मुश्किल है, लार्ज नंबर्स को मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद उनके प्रोडक्ट को फैक्टर करना वो एक डिफिकल्ट काम। इस पर सारी जो है आपकी सीक्रेसी डिपेंडेंट है। वरना जैसे डैश जो था हमारे पास विच हैव अ 56 बिट की साइज है, तो डैश हमारे पास 1976 से लेके 2005 तक एज अ स्टैंडर्ड प्राइवेट की इंक्रिप्शन के तौर पे यूज होता रहा। लेकिन 2005 के सुपर कंप्यूटर ने डैश की 56 बिट कीज को ब्रेक कर दिया, फिर उसकी जगह AES ने ले ली विच हैव अ की साइज ऑफ 128 बिट देयर। लेकिन आज की डेट तक AES जो है वो सिक्योर है,
इट मीन्स कि 128 बिट जो है वो इस वक्त सिक्योरली यूज हो रहा है, और हमारे पास इतनी कंप्यूटेशनल पावर नहीं है कि हम 128 बिट के की साइज को विद इन दैट टाइम लिमिट जो है वो ब्रेक कर सकें। मे बी इन कमिंग फ्यूचर वो ब्रेक हो जाए। तो आरएसए का एल्गोरिथम भी ओपन है, एनीवन कैन डिक्रिप्ट दैट देयर, लेकिन क्योंकि उसका की साइज बड़ा है और वो डिपेंडेंट है दो बड़े लार्ज प्राइम नंबर्स पे, तो प्राइम नंबर वो भी बड़े, और फिर उनकी प्रोडक्ट, यानी जब दो बड़े प्राइम नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक बड़ा नंबर होगा। अगर मैं आपको दो नंबर्स दूं, कहूं उनको मल्टीप्लाई करें, तो हम सबका ऑलमोस्ट आंसर एक जैसे ही होगा वैसे। तो डिफिकल्टी हो सकती है कि किसी कोई जल्दी कर लेगा, कोई देर करेगा, लेकिन आंसर शुड बी द सेम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मल्टीप्लाई कर रहा है दो नंबर्स को, एक नंबर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें कि सिलेक्टिंग, अब आरएसएल एल्गोरिथम क्या कह रहा है, आरएसएल एल्गोरिथम कह रहा है कि फर्स्ट वी नीड टू सिलेक्ट टू लार्ज प्राइम नंबर। हम पहले दो लार्ज प्राइम नंबर सिलेक्ट करेंगे, एक को हम पी कह रहे हैं, एक को क्यू कह रहे हैं। अब वो जो सेंडर है उसको पता है कि उसने कौन से प्राइम नंबर सिलेक्ट किए, वो पी और क्यू डिस्क्लोज नहीं कर रहा। वो क्या बता रहा है, वो एन बता रहा है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट टू प्राइम नंबर। तो वो एन कैलकुलेट कर रहा है, एन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट टू बिग प्राइम नंबर देयर, एन इज अ मल्टीपल ऑफ पी एंड क्यू देयर। तो वो एन निकाल रहा है, जब एन निकाल रहा है तो देन फिर एन का वो फाइव, वो फाइव ऑफ एन निकाल रहा है। फाइव ऑफ एन क्या है, phi is the Euler's function there. Phi is the Euler's notation there. तो phi of n ये कहता है कि how many number which are relatively prime within there. Relatively prime numbers क्या होते हैं? Relatively prime numbers वो numbers हैं जिनको अगर आप दो नंबर को फैक्टर करें, उनके फैक्टर में सिवाय वन के और कोई कॉमन नंबर ना हो। आप एक नंबर के फैक्टर करें और दूसरे नंबर के फैक्टर करें, अगर दोनों के फैक्टर्स में सिवाय वन के और कोई कॉमन नंबर ना मौजूद हो, इसका मतलब है वो दोनों नंबर रिलेटिवली प्राइम। दो नंबर आपस में रिलेटिवली प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम हो, वो दोनों अनप्राइम नंबर भी हो सकते हैं, तो वो आपस में रिलेटिवली प्राइम हो सकते हैं। तो फाई ऑफ एन का मतलब है कि हाउ मेनी नंबर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम विद एन देयर। अगर आपने, मैं आपसे कहूँ कि फाइव ऑफ सिक्स निकालें, तो फाइव ऑफ सिक्स का मतलब है कि आप n-1 तक के, यानी 1 से लेके n-1, आप 1 से लेके 5 के नंबर को 6 के साथ कंपेयर करेंगे कि 1 आया 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, यस है। 2 6 के साथ रिलेटिव प्राइम है, नहीं। 3 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, नहीं। 4 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, नो। 5 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, यस। यानी 1 से लेके 5 तक में से दो ऐसे नंबर से जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम, तो इट मींस कि 5 ऑफ 6 का आंसर हो गया 2। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? यस सर, आगे चलें। तो अगर दो नंबर प्राइम हैं तो उनका फाइ निकालने का आसान तरीका ही, अगर एन फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 6 की, तो अगर हम फाइ ऑफ 7 लें, बिकॉज 7 इज प्राइम,
एक वे आउट तो ये कि आप 1 से लेके 6 तक के नंबर्स को ट्राई करें। जब आप 1 को 7 के साथ देखेंगे, 2 को 7 के साथ कंपेयर करेंगे, 3 को 7 के साथ एंड टिल 6 को 7 के साथ, तो ऑल दीज 6 नंबर आर रिलेटिवली प्राइम विद 7 है। तो 5 ऑफ 7 का आंसर हो गया 6। तो इसका आसान वे आउट ये है कि अगर n प्राइम है तो 5 ऑफ n बराबर होगा n माइनस 1। अगर n प्राइम है तो 5 ऑफ n बराबर होगा n माइनस 1 के, यानी 5 ऑफ 7 होगा 6, 5 ऑफ 11 होगा 10, 5 ऑफ 13 होगा 12, 5 ऑफ 17 होगा 16। क्योंकि n प्राइम है तो आपने डायरेक्ट निकाल दिया। लेकिन अगर n प्राइम नहीं है तो फिर यू हैव टू कैलकुलेट एंड कंपेयर ईच नंबर टिल n माइनस 1 दे। तो आपने दो लार्ज प्राइम नंबर लिए p और q, उनका प्रोडक्ट लिया n, फिर आपने n का ऑयलर्स फंक्शन निकाला यानी phi ऑफ n कि हाउ मेनी नंबर विच आर रिलेटिवली प्राइम विद n देयर। तो वो क्योंकि n क्या है, प्रोडक्ट है p और q का, तो phi ऑफ n बराबर होगा phi ऑफ p इंटू phi ऑफ q। phi ऑफ p का मतलब है p माइनस 1 और phi ऑफ q का मतलब है q माइनस 1, बिकॉज p भी प्राइम है और q भी प्राइम। नाउ यू सेलेक्ट एट रैंडम द इंक्रिप्शन की e। अब आप एक की लेंगे जो कि ई कहलाएगी, जो आपकी इंक्रिप्शन की है। वो ई जो है वो 1 से लेके 5 ऑफ n के दरमियान हो सकती है। 5 ऑफ n आप निकाल चुके हैं, तो 1 से इन बिटवीन ऑफ 5 ऑफ n वो कोई भी नंबर हो सकता है, बट उस नंबर के लिए कंडीशन ये है कि जब आप उस नंबर को 5 ऑफ n के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लें तो वो 1 आना चाहिए। या इसको आसान लफ्जों में ये कह लें कि वो नंबर ई वो नंबर हो सकता है जिसका जो कि 5 ऑफ n के साथ रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। यू चूज द नंबर ई विच इज इन बिटवीन ऑफ 1 to 5 ऑफ n। वो नंबर आपने पिक किया। कौन सा नंबर ई हो सकता है? ई वो नंबर हो सकता है जिसका आप 5 ऑफ n के साथ जब जीसीडी लें तो 1 आना चाहिए। या इन द सिंपल वे आप ये कह लें कि जब आप ई वो नंबर होगा जो कि रिलेटिवली प्राइम होगा 5 ऑफ n के साथ। सो तो आपके पास जो ई हो गया, ई कॉमा एन, ई कॉमा एन जो है दैट इज योर इंक्रिप्शन की। ये आपकी इंक्रिप्शन की, यानी ये आप समझ लें कि ये आपकी पब्लिक की होगी जो कि आपने सबको बता दी। आपने ई भी बता दिया, एन भी बता दिया। अब जो भी अटैकर है उसको आपका ई पता है और एन पता है। अब वो एन उसको तो पता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि पी और क्यू क्या है। जब वो एन की फैक्टर्स करने पे जाएगा तो क्योंकि एन एक दो बड़े प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है तो उसके फैक्टर्स करना भी उसके लिए आसान नहीं होगा। तो पहले तो एन से वो पी और क्यू निकाले, फिर आप बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि विदाउट फैक्टरिंग दिस एन वो पी और क्यू तक नहीं पहुंच सकता। और अगर इसके मल्टीपल फैक्टर्स निकालेगा तो कौन सा फैक्टर यूज हुआ है, पी और क्यू क्या यूज हुआ है, ये पता नहीं। और जो हमारे पास डी है, डी हमारे पास जो है डी कॉमा एन कह लें या डी कॉमा पी कॉमा क्यू कह लें, तो ये जो डी कॉमा एन है ये हमारी क्या है, डिक्रिप्शन की है। एक्चुअली जो डी है वो आपका जो है सीक्रेट नंबर है। तो डी क्या नंबर होगा? डी वो नंबर होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ई इंटू डी कॉन्ग्रेट टू 1 मॉड ऑफ 5 ऑफ एन। यानी ई वो नंबर होगा जिसे आप, यानी डी वो नंबर होगा जिसे ई के साथ अगर मल्टीप्लाई करें और उसका हम 5 ऑफ एन के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये जो आपको लिखा हुआ है ई डॉट डी इक्वल टू 1 मॉड 5 ऑफ एन, इसका ये मॉड्यूलर नोटेशन में लिखा है, मॉड्यूलर अर्थमेटिकल नोटेशन कहलाती है ये, मॉड्यूलर अर्थमेटिकल नोटेशन की। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ई और डी को आपने मल्टीप्लाई किया और आप 1 मॉड ऑफ 5 एफ एन, इनको तो ये रिमाइंडर के बराबर।
अगर आप इसको a समझ लें, a इक्वल टू बी मॉड m लिखा हुआ है, तो a इक्वल टू b mod m का मतलब है when a is divided by m the remainder is b. This is called modular arithmetical notation. Modular arithmetical notation में जब आप a इक्वल टू b the remainder is b, इसका मतलब ये नहीं है कि b को जब आपने m से डिवाइड किया रिमाइंडर आया. a इक्वल टू b mod m का मॉड्यूलर अरिथमेटिकल नोटेशन में मतलब ये है कि when a is divided by m the remainder is b. सिमिलरली जब आप d वो नंबर ले सकते हैं जिसको e से अगर हम मल्टीप्लाई करें, जो उनका प्रोडक्ट होगा, अगर उसको फाई ऑफ n से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आना चाहिए. तो d वो नंबर हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, और d 0 से लेके n के दरमियान हो सकता है. तो ये आपके पास जो है वो RSA एल्गोरिथम कि यू in the first step you choose two big prime number, one is called p and another one is called q. Then you calculate the product of those two number, which is known as n, because n equal to p into q. Then you choose the e exponent, and e is that number which is from between 1 to 5 of n, and e satisfy that e should be relatively prime with 5 of n there. फिर आप d वो नंबर लेंगे which is in between 0 to n, but d that number which multiply by e, अगर हम उनके प्रोडक्ट को 5 of n से डिवाइड करें तो फिर रिमाइंडर 1 आना चाहिए. तो यहाँ जो e और n है वो आपकी पब्लिक की बन गई, जिससे आप सबको बता रहे होंगे, और जो आपका d और n होगा वो आपका d और p और q वो आपकी सीक्रेट की होगी. तो यहाँ हमारे पास जो इंक्रिप्शन फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा c इज इक्वल टू m टू द पावर e मॉड n. c हमारे पास क्या है, साइफर, m क्या है, मैसेज, e क्या है, इंक्रिप्शन की, मॉड n क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दैट टू प्राइम नंबर. तो जब आप किसी को e और n बता देंगे, जब आपका e होगा और n होगा, तो आप मैसेज को रेस करें पावर e पर, उसका मॉड लें n से, तो साइफर आ जाएगा. तो डिक्रिप्शन फॉर्मूला क्या होगा, m इक्वल टू c टू द पावर d मॉड n. जो आपका साइफर है, जो इंक्रिप्टेड मैसेज है, उसको रेस करें पावर d पर, मॉड लें n के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैसेज वापस डिक्रिप्ट हो जाएगा. तो ये हमारे पास इंक्रिप्शन फॉर्मूला हो गया, c इज इक्वल टू m टू द पावर e मॉड n, एंड डिक्रिप्शन फॉर्मूला क्या हुआ, m इक्वल टू c टू द पावर d मॉड n. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास p जो है वो 17 है और q जो है 11, तो दोनों क्योंकि प्राइम नंबर है, तो आपके पास n हमारे पास आ गया, प्रोडक्ट ऑफ p इंटू क्यू 187. जब हम 5 ऑफ n ले रहे हैं तो 5 ऑफ n बराबर है 5 ऑफ p इंटू 5 ऑफ q. 5 ऑफ p का मतलब है p माइनस 1 एंड 5 ऑफ q का मतलब है q माइनस 1. तो p माइनस 1 इज 17 माइनस 1 16, q माइनस 1 11 माइनस 1 इज 10. तो 16 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 160. मीन्स 5 ऑफ n का आंसर आया 160. मीन्स 160 ऐसे नंबर्स हैं जो रिलेटिवली प्राइम है 187 के साथ. यानी अगर हम 1 बाय 1 अगर हम कैलकुलेट करते तो 1 से लेके 186 के नंबर्स को जब हम कंपेयर करते 187 के साथ, तो इन टोटल 160 ऐसे नंबर्स हमें नहीं मिलते जो कि रिलेटिवली प्राइम होते. तो वो जो कि क्योंकि प्राइम की वजह से वो हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें डायरेक्टली हमने सॉल्व कर लिया. तो ई हमने चूज किया फॉर एग्जाम्पल 7 हम ई ले सकते हैं, क्योंकि जब 7 को आप 160 के साथ कंपेयर करें तो दोनों रिलेटिवली प्राइम, या अगर दोनों का जीसीडी निकालें तो 1 आ रहा है. नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द डी देयर. डी वो नंबर होगा जिसे हम 7 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें और उसके प्रोडक्ट को हम 160 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम डी को 23 ले लें, तो 23 जो है अगर हम उसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो दैट इज 161. अगर 161 को 160 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर
1 आएगा विच सेटिस्फाई दैट इक्वेशन देयर। तो हमारा यानी D23 हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है, E भी इसके अलावा भी हो सकता है। तो you can publish this key there, यानी 7,187, which is the E is 7 and 187 is the N there। ये आपकी पब्लिक की। और प्राइवेट की क्या है, जैसे आपने छुपाना है, दैट इज वो 2 प्राइम नंबर और आपका D। एक्चुअल तो D आपने छुपाना है। जब आप इंक्रिप्ट करेंगे तो मैसेज था आपके पास 88 फॉर एग्जांपल, 88 को रेज करें पावर E यानी 7 पे, इसका मॉड ले 187 से तो 11 आ गया। 11 आपका साइफर टेक्स्ट होगा। जब डिक्रिप्ट करेंगे तो आपका D क्या था, D23 था। तो 11 रेज टू द पावर 23, देन यू टेक द मॉड विद 187, तो आपके पास वापस प्लेन टेक्स्ट आ गया 88। ठीक है, क्लियर है? तो हम यहाँ स्टॉप करते हैं, फिर इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।